Hello everyone. So today we are going to learn about a topic, say functions, right? Functions as a definition we can say that it is nothing but a set of instructions, right? Set of instructions. अब डेफिनेशन वाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर याद करने लायक डेफिनेशन नहीं है दैट इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर आर वी कैन कंस्ट्रक्ट मैनी डेफिनेशंस सो विल सिंप्लीफाई दिस कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. So whenever you write down anything, something like this printf and some line is there, or you write down this c is equal to a plus b, some line is there. So every line is considered as a instruction. So whenever we club all these instructions, the set of this instruction is nothing but a function. तो function क्या हुआ? It is a block of code. Can we say this one? Yes. So function क्या है? एक block of code है या set of instructions है या इसको और बेटर अपन ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट्स एंड परफॉर्म सर्टेन टास्क. करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ये जितनी भी लाइंस लिखी है कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर ही रहे. सो दिस इज अ फंक्शन in a very simple word, right? But now the question is what a function is and why a function we need, right? So what a function is, we already seen it. What a function is, it is nothing but a set of instructions, right? Or we can say the block of code or block of instructions which executes and performs some task, right? But why we need a function? Because the question will be मैं एक मेन बना सकता हूँ, राइट? और इसमें मैं मेरा टास्क कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड टू नंबर्स, सो आई विल क्रिएट अ code like this: a is something 10, b is something 20. I have created a third variable and c is equal to a plus b. Then I will print my output, printf percentage d, and I will print c, right? So this will be my code. Then if I am able to write down the whole code inside the main, why I need a function? सो लॉजिकली जो अपन ये लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन. सो वी आर सेइंग दैट मेन इज व्हाट? मेन इज नथिंग बट अ फंक्शन, क्योंकि मेन भी तो वही काम कर रहे हैं. क्या काम कर रहे हैं? मेन में भी तो हर एक लाइन लिखी है. जस्ट नाउ वी डिस्कस, हर एक लाइन क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है. सो अब ये क्या हुआ? all these are, these four lines are set of instructions which is perform some task. In this case it is performing addition of two numbers, right? That is what my task is in this case. So मेन इज ऑल्सो फंक्शन, राइट? तो जितने भी अपन कोड करते हैं जनरली ये फंक्शन में ही लिखे जाते हैं, राइट? लेकिन फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब वाई द प्रोग्रामिंग डेवलप सच काइंड ऑफ रूल्स की फंक्शन बनाओ, उसके अंदर कोड लिखो. सो फंक्शंस आर यूज्ड फॉर कोड reusability, right? Now what exactly this terms is? reusability, reuse करना, एक बार लिखो बार बार यूज करो, that is a concept of code reusability, right? Then how I can make use of these functions? So for example, कि कोड reusability जैसी दिमाग में आता है तो एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है. जब कोई चीज का काम बार बार पढ़ रहा है तो उसके लिए तो लूप्स होते हैं. if I want to repeat something, I can use a loop. Why I still need a function? So perfect. Why we need a function? The simple answer is, we'll see. For example, let's consider void main is a function, right? मैंने आपको बोला let's create a function for factorial. You have created a or let's take you have writing, sorry, not function but writing the code. So assume that this 4 line of code is for factorial, right? फिर मैंने बोला ओके नाउ राइट डाउन द कोड फॉर प्राइम नंबर. फिर आपने अगेन अज्यूम दिस 4 लाइन्स ऑफ कोड इज फॉर code which will check whether the number is prime or not. फिर मैंने बोला okay, I need again the factorial logic. So what you will do is the upper section of this 4 line you will copy and you will paste, because logic तो आपका सेम ही है, or you will rewrite whatever. फिर से आपने लिखा, right? Then again मैंने आपको बोला no, okay, write down one more program for let's say to find out the Fibonacci series. So आपने यहाँ पे Fibonacci series का कोड लिख दिया. And again I am saying okay, I need one more factorial logic. So again copy paste and you return the factorial logic, right? And we are done. Now the question is about the code reusability. मुझे कोड बार बार यूज करना है, करेक्ट? सी
this is the first time we are using the factorial logic, this is the second time we are using the factorial logic, and this is the third time we are using the factorial logic. Now the challenge is, अब आप अगर if we are coming to the another side of this question कि अगर repetition है तो why not loops? तो ठीक है, can we use a loop at this particular point of time? No. Why? Because loop can be used for repetition but at the same level, right? लूप अपन यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटेशन, बट वो एक ही जगह पर रिपीटेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू this I need this factorial logic and I want this execution to be happen 5 times. So what you can do is you can write down a 4 line of code for factorial and you can put a loop which will iterate 5 times. तो आपका लॉजिक यहीं पर ही 5 बार चल जाएगा. That is fine. But I want a factorial logic at different levels. मुझे एक बार यहाँ चाहिए, फिर कुछ और काम करना है, फिर एक बार यहाँ चाहिए, कुछ और काम करना है, फिर चाहिए. So I have a repetition but at different levels, and loop cannot do such kind of job. We cannot pause a loop and resume it, pause a loop and resume it, correct? Right? So what we can do is, in this particular case मुझे factorial का logic 3 बार चलाना है, so there is a repetition. Still I cannot make use of loop because loop एक ही जगह repeat करता है, at different levels repeat नहीं करता है. तो मेरे पास एक ऑप्शन है, कोड बार बार लिखो. सो यू कैन सी फर्स्ट स्टेप पे मैंने कोड लिखा है फॉर फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फिर से कोड लिखा है द सेम कोड फॉर फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फिर से कोड लिखा है द सेम कोड फॉर फैक्टोरियल. सेम कोड में लिखना पड़ रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज, अगर मैंने 3 बार कोड लिखा है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, फैक्टोरियल का कुछ तो लॉजिक बदल गया, राइट? So I have to, or some changes happened. I have to make the change at this 4 lines. The same change has to be done at this 4 lines. The same change has to be done at this 4 lines. अब ये तो एक एग्जाम्पल लिया है और 3 ही बार का काम पड़ा है, राइट? तो अपन ने कर दिया चेंजेस. अगर ये 3 की जगह 30 बार होता तो, so at all these 30 steps we have to go and we have to change it. And if let's take for example एक जगह मिस हो जाता तो that will be the again problematic. The formula will not behave correctly in that case, correct? So अपने को हर बार changes कभी आए तो एक जगह पे करके काम नहीं होगा. Every step we have to do this, right? And the second thing, the second case in this case, right? The second thing is, for example, अभी तो मुझे पता है कि I want a factorial at these 3 levels. तो मैंने factorial का कोड 3 बार लिखा, but we cannot predict the futures, right? And for example, in future, again someone need a factorial logic. So the person have to rewrite the code again. Why? Because भले वो कॉपी पेस्ट करेगा लेकिन करना तो पड़ेगा, या तो खुद से लिखेगा या तो कॉपी पेस्ट कर लेगा पुराने लॉजिक को, बट करना पड़ेगा. फिर और फ्यूचर में फिर फैक्टोरियल का किसी को जरूरत पड़ा, फिर से उसको फैक्टोरियल का लॉजिक आइदर कॉपी पेस्ट या भी लिखना पड़ेगा. सो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रिपीट द कोड एंड दिस विल, ये कोड रिपीट होने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? the repetition will increase the size of your main function, right? And it will, due to this length, since the length is going to be increased, it will increase the complexity as well, right? तो कॉम्प्लेक्स कोड होगा. और प्रोग्रामिंग में बेस्ट हैबिट किसको माना जाता है? वी हैव टू इग्नोर द रिपीटेशंस, राइट? कहीं पे भी रियल प्रोजेक्ट्स में भी अपन वही बात करते हैं. वेन एवर वी हैव टू राइट डाउन द कोड, वी हैव टू make use of the reusability concept. It means if you are seeing that the same line of code is repetitive, we have to think and we have to make the logic such that the line there must be no duplication, correct? Okay, now how to solve this problem then? So to solve this problem, functions come in picture. So what the languages have recommended, so C ने एक तरीका क्या दिया? Okay, write down a function for this. And how to write down the function? See, you have 3 times of this same logic, so write down a single time, correct? ये फैक्टोरियल का लॉजिक एक ही बार लिख दो, that's it. और अब यहाँ से हटा दो, बिकॉज वी ऑलरेडी, यहाँ से भी हटा दो एंड यहाँ से भी हटा दो, करेक्ट?
and use this at this level because यहाँ पे अपने को चाहिए था. तो at first step use the factorial logic, second step use the factorial logic, third step also use the factorial logic. So we are going to use it. So how many times we have created now? Only one. And how many times we are using it? 3 times, right? तो कोड रियूजेबिलिटी मीन्स कोड को रियूज कर रहा हूं मैं. अब अगर कहीं पे जाके चेंज आया तो मुझे सिर्फ एक जगह पे सेंट्रलाइज जगह पे जाकर कोड चेंज करना है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. If for example in the future some I need to use it at the fourth step, I just have to use it. I do not have to recreate it. फिर वापस फ्यूचर में कहीं पे यूज करना है तो I just have to use it. Right? Is this clear? Perfect. Now this is the basic concept of your functions. So functions we create, right, to achieve the code reusability. And what exactly a function is? अब यहाँ अपन ने किया क्या है? We are not doing anything new. Whatever we are writing in main, we are just splitting it that code from the main. That's it. So we cut this code from the main and we pasted it somewhere else. And that is your function. So what a function is? It is nothing but a set of instructions as we discussed. And why we need this set of instructions to be separated from main? So that we can do the code reusability. And why we are doing this code reusability? So that we can make the code centralized kind of thing. So that if someone change it, आपका एक ही जगह चेंज होगा. If n number of system need to use it, तो उनको सिर्फ यूज करना होगा, उनको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है. तो फ्यूचर में कभी कोई नया जरूरत पड़ा फैक्टोरियल का तो वी जस्ट हैव टू यूज इट, वी डू नॉट हैव टू रिक्रिएट इट. राइट? क्लियर? ओके. ना एज पर द कंसेप्ट अभी आपको ये लग रहा होगा कि फैक्टोरियल का क्यों अलग किया? फिर प्राइम नंबर का भी तो सेम है, फिबोनाची भी तो सेम है, वो क्यों अलग नहीं किया? सो डेफिनेटली उनको भी अलग करना चाहिए. राइट? So ideally the code must look like this. We'll write down the proper code separately. I am just going through the concept right now. तो जहाँ पे फैक्टोरियल का बनाया, similarly we will create a prime number function. Similarly we create a Fibonacci function. Right? So whenever we have some task, right, we will create it as a separate. So for example मेरे पास एक टास्क आया, मुझे फैक्टोरियल बनाना है, तो मैंने वो टास्क को अलग से एक फंक्शन के रूप में बना दिया. फिर मेरे पास एक टास्क आया कि प्राइम नंबर चेक करने का कोड लिखो, मैंने उसको भी एक फंक्शन बना दिया. फिर मेरे पास एक टास्क आया फिबोनाची का कोड लिखो, मैंने उसका भी एक टास्क बना दिया. और अब ये मेरे पास 3 फंक्शंस है और बेसिकली वी कैन से 3 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. अब जो ज़रूरत है वो यूज़ करो. राइट? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज़ फैक्टोरियल. Right? Let me clear this one as well so that it will be much easier to see. Okay. Sorry. Okay. So if I need a factorial, I will just use this function, right, at this step. Then I need a prime number, so I will use this function now. Then I need a Fibonacci series, I will use this function now. Again, let's say I need a factorial, again I will use this function. So now you can see in main you can see a very clear code. The code is not getting complex, the code is not getting messy. The functions are created only once, so I am reusing each and every function, and if there is any changes in any particular function, it will not disturb the complete code. Because अगर मेन में ही सारा कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर भी, फिबोनाची भी, फैक्टोरियल भी, और अगर कहीं पे कुछ इशू आया तो मुझे पूरा कोड डिबग करना पड़ेगा या पूरे कोड को चेक करना पड़ेगा. राइट? बिकॉज पूरा कोड एक ही जगह पर है. बट अगर अपना कोड अलग अलग है, फैक्टोरियल का, प्राइम नंबर का, फिबोनाची का, और कल जाके अगर मैं फैक्टोरियल यूज कर रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ इशू आया, तो आई जस्ट हैव टू चेक दिस फंक्शन. आई डू नॉट हैव टू चेक द प्राइम नंबर लॉजिक, आई डू नॉट हैव टू चेक द फिबोनाची लॉजिक. राइट? सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ योर फंक्शन. नाउ व्हेनेवर वी आर सेइंग ये फंक्शन बनाना, राइट, बनाया, उसको यूज करा, राइट, तो इसके लिए टेक्निकल टर्म्स है प्रॉपरली, and that we are going to see now. So very first step is we need to create a function, because if the function exists then only we can use it. If the function does not exist we cannot use it. So first we have to create a function, and that is known as
function definition. So function definition means creating of the function. So this is your function definition, this is the function definition, this is the function definition. So right, तो function बनाने को बोलते हैं function definition. It means create of a function. अब function बनाया तभी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फंक्शन बना के तो रख दिया और लाइफ में कभी यूज नहीं किया. सो व्हाट इज द पॉइंट देन टू क्रिएट इट, राइट? सो यूज भी होना चाहिए. तो यूज करने का, जो यूज लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग. सो इट इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग, राइट? दैट इज नथिंग बट यूजिंग द फंक्शन. बट इसमें एक और चीज होती है, तीसरा. देखो, मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है, बन गया, वो यूज भी कर सकते हैं, यूज भी कर रहे हैं. बट अब बीच में आते हैं अपने कंपाइलर्स. सी, इफ आई एम राइटिंग अ printf फंक्शन लाइक दिस, printf, राइट, और उसके आगे जो भी अपना सिंटैक्स है वो मैंने लिखा. And if I ask you whether it will work, if the syntax is correct, you will say yes. If the syntax is correct, it will work. Okay, now I am telling you, I am writing print and the same syntax in the double quote and whatever it is, like this. And will it work? You will definitely say no, it will not work. बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैंने ये बाकी पूरा प्रॉपर दिया है, डबल कोट है, मैसेज है, सब कुछ है, सेमीकोलन है, एवरीथिंग इज देयर, ब्रैकेट्स है, एवरीथिंग इज देयर. बस यू विल से नहीं नहीं, प्रिंट का स्पेलिंग तो गलत है ना, वो प्रिंट एफ होना चाहिए. एंड इफ आई आस्क यू हाउ यू कम टू नो दैट प्रिंट एफ ही होना चाहिए, प्रिंट क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज दैट इज द सिंटैक्स. एंड व्हाट इज द सिंटैक्स? और सिंटैक्स कंपाइलर कैसे क्या एरर देगा? बिकॉज कंपाइलर नोज द सिंटैक्स, right? We include the header files, right? stdio.h, you have seen this in C, stdio.h, standard input output file. So why we are including this header file? So that you can simply allowing the compiler to understand the syntaxes, right? If you want to see more details in this one, you can visit the previous videos as well, right? So stdio.h is basically a header file which contains the syntaxes. But right, but ये जो सिंटैक्स है ये मेरे फंक्शन के थोड़ी होंगे, बिकॉज ये तो सी ने जो बनाए हैं, प्रिंट एफ सी ने बना के दिया, स्कैन एफ सी ने बना के दिया, राइट? ऐसे जो बहुत सारे फंक्शन जो सी ने बना के दिए, उसके बारे में सी को पता है और उनके लिए उन्होंने हेडर फाइल बना दी. बट टुडे, लेट्स टेक टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन से फैक्टोरियल. अब मैं आज अगर फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहा हूँ तो ये सी को सालों पहले थोड़ी पता था कि मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ, मैं क्या नाम देने वाला हूँ. सो हाउ द सी कंपाइलर विल कम टू नो दैट दिस इज द फंक्शन नेम, the function name is factorial, what the function will do, how the function will run, right? How the function is created. इसके बारे में सी को कुछ नहीं पता है, बेसिकली कंपाइलर को कुछ नहीं पता है. So we have to tell the compiler what my function name is, what the function will accept, what the function will return, and whatever related to the function which we are going to see in the next few minutes. So ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन का नाम क्या है? बिकॉज यहाँ तो मैंने बोला प्रिंट एफ, आपने बोला हाँ ये तो कंपाइल हो जाएगा, कंपाइलर समझता है प्रिंट एफ को. प्रिंट नहीं कंपाइल, ये कंपाइल नहीं होगा. प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट नहीं समझ में आता है कंपाइलर को. तो जैसा प्रिंट एफ और प्रिंट कंपाइलर को समझ में आता है, नहीं आता है, वैसे ही मेरा फंक्शन भी तो कंपाइलर को समझ में आना चाहिए. अदरवाइज कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा नो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट फैक्टोरियल, सो दिस इज अ एरर. तो ऐसा तो मेरा कोड ही नहीं चलेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट अ फंक्शन syntax is, and that is known as declarations, right? Or we can say simply the syntax. So these three things are very mandatory, right, for your function creation or using the functions. We need a definition, we need a calling, and we need a declaration, right? कौन सा कैसा बनाते हैं, कैसा लिखते हैं, that we are going to see on the next slide. But definition means we have to create a function, calling means we have to use that function, and declaration means we have to tell the compiler that how my function syntax will look like. These three things are there, right? अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, डिक्लेरेशन, यही सब कुछ आपके हेडर फाइल में मेंशन्ड होता है. सो प्रिंटफ का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में है, स्कैनफ का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में है, और भी कोई आप फंक्शन देखोगे जैसे
स्ट्रिंग के फंक्शन है वगैरह, वो हेडर फाइल्स में होते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द std.h, इट इज़ इन सेपरेट हेडर फाइल, बट येस देयर इज अ हेडर फाइल फॉर दैट. सो हर एक फंक्शन जो बनता है उसका सिंटैक्स कंपाइलर को पता होना चाहिए, तो ही कंपाइलर उस पर काम कर पाता है. अगर लैंग्वेज के सिंटैक्सेस है तो लैंग्वेज का काम है बना के देना वो सिंटैक्सेस को कंपाइलर को, और अगर यूजर डिफाइंड फंक्शंस है तो यूजर का काम है वो फंक्शन को बना के देना, उसका सिंटैक्स कंपाइलर को समझाना बेसिकली है. अब लैंग्वेज जो बनती है तो उसमें तो वो लोग करके देते हैं कोड, लेकिन जब अपन एक डेवलपर एक फंक्शन बनाता है तो उसको डिक्लेरेशंस करना पड़ता है. मेक सेंस? Okay, now I hope you have seen main in two forms. void main ब्रैकेट एक आपने ये फॉर्मेट देखा होगा, या फिर int main ब्रैकेट ये फॉर्मेट देखा होगा, राइट? सो दिस फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज रिटर्न टाइप, राइट? हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है. void मीन्स द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न रिटर्न करना मतलब क्या? वापिस देना. मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए तो मैं आपको वापिस दे रहा हूँ, राइट? सो इन द सेम वे रिटर्न टाइप मीन्स रिटर्न करना, राइट? तो ये void का मतलब होता है कुछ नहीं, ना उधार लिया है ना रिटर्न करना है, राइट? दैट इज void. int मीन्स एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना, वापिस देना, ठीक है? ओके. सो ये भी पुराने वीडियोस में आप विजिट कर सकते हो कि इंट ही क्यों लिखना पड़ता है, और कुछ लिख सकते हैं क्या, एंड ऑल दैट इन द फर्स्ट प्रोग्राम सीरीज, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. बट राइट नाउ विल फोकस ऑन द फंक्शंस पार्ट. तो हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन्ड होता है. अगर वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो इट विल बी द टाइप व्हाट द फंक्शन इज रिटर्निंग. अगर नहीं कर रहा है सो इट विल बी सिंपली void, means the function not returning anything. The second part in the function is function name. हर एक फंक्शन का नाम होता है, राइट? ठीक है, आप जो चाहो दे सकते हो. फिर आप बोलोगे कि ठीक है हमारी मर्जी पे डाल दिया है अभी, तो हम मेन को भी बदल देते हैं, मेरा कुछ नाम दे देता हूँ, आपका कुछ नाम दे देता हूँ. सो नो, दैट इज ट्रू if your function is a pure user defined function, राइट? एंड मेन इज नॉट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. फिर अगर इसकी बात करें तो फिर मेन क्या है, यूजर डिफाइंड या प्री डिफाइंड, राइट? इफ यू आर सेइंग इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, सो यू आर पार्शियली करेक्ट. व्हाई इट इज पार्शियली? बिकॉज देखो, यूजर डिफाइंड मतलब क्या, यूजर सब कुछ बना सकता है, ठीक है? तो अगर मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ तो मैं इंट लिखूंगा और फिर मेन वन लिख देता हूँ, क्योंकि यूजर मुझे मेन वन नाम देना है और अंदर जो भी कोड लिखना है लिख दूंगा. सो दिस इज नॉट अलाउड, करेक्ट? फिर आप बोलोगे ठीक है फिर अब इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, राइट? मतलब प्री डिफाइंड. फिर मैं बोलूँगा ठीक है, अगर प्री डिफाइंड है तो मेन के बाद ब्रैकेट के अंदर कोड क्यों लिखते हो? बिकॉज ये कोड तो आप आपके हिसाब से लिखते हो. एंड इफ द फंक्शन इज प्री डिफाइंड तो ये तो बना बनाया होना चाहिए. जैसे प्रिंट एफ है उसमें कहाँ कुछ लिखना होता है, स्कैन एफ है उसमें कहाँ कुछ लिखना होता है, वो तो डायरेक्टली यूज करना होता है. फिर मेन में कोड अपने मेरे हिसाब से लिखता हूँ तो ये तो फिर यूजर डिफाइंड होना चाहिए. तो कोड अपन लिखते हैं तो उस हिसाब से तो यूजर डिफाइंड होना चाहिए, बट नाम नहीं बदल सकते तो उस हिसाब से तो प्री डिफाइंड. सो मेन इज ओनली अ single function which follows a special category, that is pre-declared and user defined. मेन इकलौता ऐसा फंक्शन है जो प्री डिक्लेयर्ड है और यूजर डिफाइंड है. अब प्री डिक्लेयर्ड क्यों? बिकॉज इसका सिंटेक्स बना है, पहले से फिक्स है, अपन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. यूजर डिफाइंड क्यों? बिकॉज बनाता यूजर है, उसका कोड यूजर लिखता है. तो मेन क्या हो गया, it is neither a totally predefined function, it is neither totally a user defined function, it is a mixed category, pre-declared and user defined. हाँ, लेकिन इसके अलावा आप कोई फंक्शन बोलोगे, जैसे printf और scanf, so that is a pure pre-declared, right? बने बनाए मिले. अगर मेरा खुद का फैक्टोरियल बना रहा हूं तो उसमें तो कुछ भी बनानी है तो इट इज a user defined, right? Okay, so this is a function name. And this third thing, these are known as receiving parameters.
राइट. अब रिसीविंग पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, जो पैरामीटर्स या जो डेटा भेजा जाता है तो वो रिसीव करने के लिए, राइट. मे बी अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट इन द नेक्स्ट फ्रेम वी विल मेक इट मोर क्लियर, राइट. सो पहले अपन ने क्या देखा, कभी भी फंक्शन बनाना है, राइट, तो अपने को पहले फंक्शन को मतलब फंक्शन को बनाना है, यूज करना है, तो पहले तो बनाना पड़ेगा उसको. सो उसके लिए अपन ने देखा है वी हैव टू वी नीड अ फंक्शन डेफिनेशन, मतलब फंक्शन बनाना पड़ेगा. फिर उसका यूज करना है तो दैट इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग, करेक्ट. तीसरा, फंक्शन के बारे में कंपाइलर को समझाना पड़ेगा सिंटैक्स, तो दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन. तो ये हर एक फंक्शन का डेफिनेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है और कॉलिंग होती है हर एक फंक्शन का, ठीक है. अब फंक्शन बनाने के लिए जो फंक्शन बनते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है रिटर्न टाइप, जो बताता है फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है. एक होता है फंक्शन का नाम, और एक अगर उसको कोई डेटा पे ऑपरेशन करना है तो हाउ टू रिसीव द डेटा, सो दिस ब्रैकेट इज फॉर रिसीविंग दैट डेटा. इन आवर केस राइट नाउ both the brackets are empty, you can see, so we are not receiving any data, right. Clear? Is this clear? Perfect. Now moving ahead, so now we have uh, two pairs of three things. First thing is, अगर फंक्शन अपने को बनाना है, यूज करना है, तो पहले अपने को डिक्लेरेशन लगेगा, डेफिनेशन लगेगा, कॉलिंग लगेगी, ठीक है. अब उन तीनों का यूज करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए, फंक्शन जब अपन सोचेंगे बनाने के लिए तो अपने को फंक्शन का नाम सोचना पड़ेगा, फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, विच इज नोन एज रिसीविंग पैरामीटर, व्हाट द फंक्शन कैन एक्सेप्ट, और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ठीक है. इट विल बी सिंपली लाइक दिस. मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, और मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे एक चक्की है, तो मैं क्या करूँगा, आपसे गेहूँ लूँगा, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करूँगा, राइट, पीसूँगा उसको, और वो जो आटा रहेगा द फ्लोर आई विल गिव बैक टू यू. तो दैट इज व्हाट रोल ऑफ योर फंक्शन इज. तो मैं जो आटा चक्की चला रहा हूँ, मतलब मैं एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा हूँ. मैं, मुझे गेहूँ दो, मैं उसमें अपना वर्क अराउंड करूँगा और वो आटा लाकर आपको थमा दूंगा. क्लियर है, राइट. परफेक्ट. तो ये तो अपना एकदम बेसिक सा एग्जांपल हो गया. तो फंक्शन भी काइंड ऑफ वैसा ही कुछ करते हैं, उसको डेटा दे दो, वो प्रोसेस करेगा और वो आपको आउटपुट लाके दे देगा, ठीक है. अब जब भी फंक्शन बनाने हैं तो फंक्शन बनाने के चार पॉसिबल तरीके होते हैं. only four possible ways are there to create a function, and we are discussing this for all the languages because functions सारी languages में होते हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखो ये पहला वाला देखा, फंक्शन क्या कर रहे हैं, रिटर्न वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और रिसीव क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स और एम्प्टी, तो कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं. तो फर्स्ट टाइप इज विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर्स, करेक्ट. ये फर्स्ट टाइप हो गया. सेकेंड टाइप उसी के बाजू में देखो, है ना, एक रिटर्न कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. आई गेस आपको भी अभी समझ में आ गया होगा. द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, द फंक्शन नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, फिर द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दैट माइट बी पॉसिबल. सो विदाउट रिटर्न टाइप एंड बट द फंक्शन is accepting the parameters, so with parameters. तीसरा हो सकता है फंक्शन इज रेडी टू रिटर्न, सो विथ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो विदाउट पैरामीटर्स, राइट. वही चार कॉम्बिनेशन जो नॉर्मल अपने चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट वन. और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होता है, विथ return type, the function is returning as well as the function is accepting the parameters. So these are the four possible ways to create a function, right. Clear? So ये अपन अलग अलग समझ रहे हैं. अब इन सबको
क्लब करके एक चीज समझेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज द फंक्शन कैनॉट रिटर्न एनीथिंग, द फंक्शन कैनॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, द फंक्शन कैनॉट रिटर्न एनीथिंग बट एक्सेप्ट द डेटा, the function will return the data but do not accept anything, or the function will accept as well as return the data. Correct? So these are the four possible combinations, right? Now अब ये फंक्शन बनता कैसे है, बिकॉज ये तो थियोरेटिकली तो सब पढ़ लिया, राइट? क्या पढ़ लिया कि ठीक है फंक्शन क्यों बनाना है, दैट वी हैव सीन, राइट? हाउ टू क्रिएट सिंटैक्टिकली वी हैव नॉट सीन, बट अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा कि फंक्शन बनाना है तो वी नीड डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग, ये लगता है। ठीक है, 4 टाइप से फंक्शन बना सकते हैं, हर एक फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा, फंक्शन का नाम रहेगा और डेटा भी एक्सेप्ट करेगा या तो नहीं करेगा, रिसीविंग पैरामीटर्स, राइट? अब ये टेक्निकली कैसे लिखना है दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's start with this one. You have this hash include and all that. Let me write it down. Hash include stdio.h. Perfect. And we'll create a very simple program, simple interest calculation. सबसे सिंपल प्रोग्राम है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट बचपन में पढ़ा ही है सभी ने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, खत्म, सिंपल है ना? मतलब आपके लिए भी सिंपल, मेरे लिए भी सिंपल, ना मैथ्स आपको आता है ना मुझे आता है, तो अपन बहुत सिंपल इसको रखते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, करेक्ट? ओके, नाउ अब इसके लिए क्या चाहिए, देखो मेन तो चाहिए ही चाहिए, वाई? बिकॉज मेन नहीं रहेगा तो कोड रन कैसे होगा? सो मेन इज द एंट्री पॉइंट, सो दैट वी नीड इट, सो वी विल राइट डाउन दिस इंट मेन curly bracket. Now there are two separations, let me separate it out. देखो अब ये दो घर की बात कर रहे हैं अपन, इज इट विजिबल? लेट मी मार्क इट समथिंग, okay, my drawing is not that good so you can ignore it. Perfect. So there are two sections, right? एक मेन है और एक फंक्शन है ना? क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में क्या बात किया था कि फैक्टोरियल का कोड, या जो मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, वो मेन में लिखा था तो अपन ने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कट करके सेपरेट आउट कर दिया, है ना, मेन से अलग कर दिया। तो अभी भी वही कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने वो कोड मेन में लिखते थे, उसको सेपरेट आउट कर दिया। तो अब सेपरेट आउट कर दिया तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का नाम लगेगा, राइट? तो मैंने एक फंक्शन का नाम डिसाइड किया, लेट्स टेक सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा फंक्शन का नाम है। द नेमिंग कन्वेंशन लुक लाइक दिस, एस स्मॉल रहेगा, आई कैपिटल रहेगा, इन अ कैमल केस वी हैव टू डू, राइट? आई होप आपको कैपिटल दिख रहा होगा, यू हैव टू राइट डाउन इट एज स्मॉल वन, राइट? सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा, अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, वाई इट इज कुछ भी, बिकॉज ये जो नाम है ये यूजर डिफाइंड है, फंक्शन अपन अपने हिसाब से बना रहे हैं, ये कोई बना बनाया फंक्शन है कि अपने पास, नहीं, तो अपन अपने हिसाब से फंक्शन का नाम दे सकते हैं, राइट? तो ये कुछ भी मैं दे सकता हूँ क्योंकि यूजर डिफाइंड कैटेगरी है, तो सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अब मैं आपको इसको फर्स्ट टाइप से बनाना बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप इज विच वन? द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर्स, करेक्ट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहला अपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया, द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो फंक्शन रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो रिटर्न टाइप क्या लिखना पड़ेगा? void. Either function do not return anything, we always mention void. Why? Because अगर आपने void भी नहीं लिखा ना तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंटीजर अज्यूम कर लेता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, बट मुझे तो कुछ रिटर्न करना ही नहीं है, तो दैट्स वाई void. देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये 4 टाइप क्यों है, किसी किसी दिमाग में होने भी चाहिए बेसिकली, और आए भी होंगे कि 4 टाइप ही क्यों चाहिए भैया, फंक्शन बनाना था तो एक टाइप का बना देते हैं, खत्म, 4 टाइप्स क्यों सीखने हैं? ठीक है, और अगर 4 टाइप बनाए तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कब बनाना है, कौन सा कब यूज करना है? तो एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, जस्ट वी हैव टू टेक द पेशेंस, राइट? तो एक बार अपन ये चारों टाइप बनाना सीख लेंगे ना, फिर बहुत हद तक तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि ये 4 टाइप अलग अलग क्यों बनाए और कौन सा कब यूज करता है। बट स्टिल फ्रॉम माय साइड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई लैंग्वेज हैव गिवन द 4 टाइप्स टू क्रिएट अ फंक्शन,
and out of these 4 types in which scenario we have to pick the which type of function that we are going to see. but वो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है बिकॉज अभी तो आपको फंक्शन ही नहीं पता है, अपन ने डिस्कस ही नहीं किया है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू ऑल द 4 टाइप्स एंड एट द एंड वी विल कंपेयर ऑल दिस 4 टाइप कि कौन सा बेटर है, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा किस सीन में यूज होगा, किस सीन में यूज नहीं होगा, लाइक दिस. परफेक्ट. ओके, कमिंग बैक नाउ. एंड द सेकेंड इज विदाउट पैरामीटर, मतलब हाथ खाली है ना, ठाकुर वाले हाथ. करेक्ट, कुछ भी नहीं है. तो फंक्शन का नाम सिंपल इंटरेस्ट है. फंक्शन रिटर्न क्या करता है, कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन वॉइड. और फंक्शन एक्सेप्ट क्या करता है, उसके तो बेचारे के हाथ ही नहीं, एक्सेप्ट क्या करेगा, तो कुछ भी नहीं. क्लियर. परफेक्ट. अब इस फंक्शन का काम क्या है, नाम देख के समझ में आ रहा होगा. इट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो इस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए यूजर से. आई नीड अ प्रिंसिपल, आई नीड अ रेट एंड आई नीड अ टाइम. ठीक है. अब मेन का क्या कहना है, ठीक है ठीक है, आपको सब चाहिए ना, फंक्शन को बोल रहा है वो, राइट. अज्यूम दिस कि ये दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, मेन बोल रहा है ठीक है तुमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज चाहिए, प्रिंसिपल रेट टाइम, मैं ला के देता हूँ. ठीक है. तो इसने क्या किया, फटाफट, अभी तो मेरा नेमिंग कन्वेंशन पे मत जाना, मैं थोड़ा सा गलत ही लिख रहा हूँ. आइडियली प्रिंसिपल रेट टाइम पूरा होना चाहिए, मैंने शॉर्टकट में पीआरटी लिखा. वो प्रिंसिपल को स्कैन करके लिया, रेट को स्कैन करके लिया, टाइम को स्कैन करके लिया, और वो सब डेटा किसको देना पड़ेगा, फंक्शन को. करेक्ट. प्रिंसिपल रेट टाइम मेन ने फटाफट यूजर से ले लिए कि हाँ भाई सिंपल इंटरेस्ट को बेचारे को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ठीक है फटाफट कैलकुलेट करो, और वो उसको दे दिया सिंपल इंटरेस्ट को. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ देख रहा है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है. क्यों. अब अगर आपने शोले देखी होगी तो उसमें भी देखो एक सीन में क्या होता है कि धर्मेंद्र उसको देखता है ठाकुर को, और वहाँ पे बंदूक पड़ी रहती है और उसको इशारा करता है कि मुझे दे दो, बट ठाकुर क्यों नहीं देता है, उसके हाथ ही नहीं थे, वो बेचारे कहाँ से देगा, राइट. सेम वे मेन तो तैयार है देने के लिए, वो बेचारे ने तो मेहनत भी कर ली, डेटा भी लेके आ गया, और वो देने गया सिंपल इंटरेस्ट को, बट बेचारा सिंपल इंटरेस्ट तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है. करेक्ट. और क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रिसीविंग पैरामीटर्स वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट. तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इफ there is no receiving parameter in a function, then a function cannot accept anything. Accept का मतलब होता है कि if someone is giving the values to the function, that is not possible. Why it is not possible? Because whenever the values, if some other function, right, because main is also a function, if main function is giving the values to the function must receive it. बट यहाँ पे अपना ब्लैंक है, मतलब फंक्शन रिसीव नहीं कर सकता है, और जब फंक्शन रिसीव नहीं कर सकता है तो फिर ये कोई काम का नहीं है, राइट. ये सब हटा दो यहाँ से, बिकॉज इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है. अब मेन भी बेचारा उदास कि क्योंकि मेन को क्या चाहिए था, मेन को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, वो उसको आता नहीं है मेन को. मेन भी मेरे जैसा है, उसके भी फॉर्मूलेज वीक है. तो मेन ने क्या किया कि ऐसे बंदे के पास गया जिसको वो फॉर्मूलेज आता है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट था, तो मैंने बोला ठीक है भाई तू मदद कर दे, ये मेरे से डेटा ले ले. बट वही सेम, मेन डेटा लेने को तैयार नहीं है बिकॉज द रिसीविंग पैरामीटर्स एम्प्टी. तो फिर सिंपल इंटरेस्ट ने बोला ठीक है भाई एक काम करता हूँ, मैं खुद ही डेटा ले लेता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, आंसर बता देता हूँ. मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मेन से तो डेटा पास कर नहीं सकते. तो जब भी मेन डेटा पास करेगा, अब मैं मेन बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द सिनारियो व्हाट वी आर टेकिंग. आइडियली फंक्शन को जो भी यूज करेगा वो डेटा अगर देना भी चाहे तो फंक्शन नहीं ले पाएगा अगर वो ब्रैकेट्स एम्प्टी है तो. मतलब यूज करने वाला डेटा दे ही नहीं सकता है, जो भी फंक्शन को यूज करेगा वो डेटा नहीं दे सकता है. फिर डेटा तो चाहिए बिकॉज बिना डेटा के तो फंक्शन कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो फंक्शन को ही डेटा भी स्कैन करना पड़ेगा. सो नाउ द कोड व्हाट वी जस्ट रीड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव टू शिफ्ट इट टू द राइट साइड. तो यहीं पर ही पहले अपने वेरिएबल्स बनेंगे, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. फिर अब ये तो वेरिएबल्स बन गए तो इसको स्कैन भी करना पड़ेगा. सो विल स्कैन इट, printf enter principal comma rate comma time.
/n for the new line, and we'll scan it. So scanf %f. Why %f? Because we are scanning a float. So 3 times %, because we are going to scan 3 values, तो 3 बार %f. पहला एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल. अब ये फंक्शंस में अपने को ये भी कहानी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे एम्परसेंड क्यों लिखना पड़ता है स्कैनफ में. वो भी अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को. एक बार फंक्शन हो जाएगा तो वी विल क्लियरली सी दिस कि व्हाई अ फंक्शन नीड एन एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल, एड्रेस ऑफ रेट, एंड आई विल राइट डाउन एड्रेस ऑफ टाइम एट द नेक्स्ट लाइन बिकॉज वहाँ जगह नहीं है, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये हो गया. अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे, तीनों में डेटा भी स्कैन हो गया. अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए आउटपुट स्टोर करने के लिए, SI. करेक्ट. तो फिर फॉर्मूला क्या बना, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100. अब ये पूरा सॉल्व होके SI में आउटपुट स्टोर हो गया. अब ये SI में जो आउटपुट है ये भी दो तरीके के. देखो सिंपल इंटरेस्ट जो फंक्शन है उसने क्या किया, उसको डेटा कहीं से मिल नहीं रहा है बिकॉज उसने ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, मतलब डेटा रिसीव ही नहीं कर सकती. यू कैन सी, आई विल सर्कल इट. ये जो सर्कल बना है ये तो ब्लैंक है, करेक्ट. तो यहाँ पे डेटा रिसीव होता है. अब एक ऑप्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी फिर अपन नेक्स्ट फंक्शन जब देखेंगे तो तब उसमें और डिटेल में बात करेंगे, बट एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ. ये जो ब्रैकेट है, अगर ये प्रिंसिपल रेट टाइम मैंने जो फंक्शन में स्कैन किया ना, ये अगर एग्जांपल मेन करता, तो मेन अगर पास करता तो फंक्शन उसको यहाँ पे, जहाँ मैं अभी अंडर हाइफन बना रहा हूँ, ऐसा डैश बना रहा हूँ, वहाँ पे रिसीव होता. तो वहाँ पे अपने को रिसीविंग के लिए पैरामीटर्स रखने पड़ते हैं. बट अभी अपन वो टाइप देख ही नहीं रहे तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे. तो अभी के केस में तो ब्लैंक है. अगर ब्लैंक है तो इफ द फंक्शन इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग, इफ द फंक्शन इज विदाउट द पैरामीटर्स, so in that case no one can pass the data to the function. अगर फंक्शन का ब्रैकेट एम्प्टी है तो अपन डेटा नहीं दे सकते. तो डेटा नहीं दे सकते तो इसलिए अपन ने डेटा कहाँ लिया, फंक्शन के अंदर. फिर उसके बाद में फॉर्मूला तो फंक्शन को ही आता था, उसने कैलकुलेट कर लिया. अब फंक्शन क्या बोल रहे हैं कि मैं रिटर्न भी नहीं करूंगा भाई, राइट. बिकॉज रिटर्न टाइप अपन ने क्या बोला, वॉइड द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. तो फंक्शन ना डेटा ले रहा था, तो उसने डेटा खुद ही ले लिया. और फंक्शन अड़ के बैठा है काइंड ऑफ फूफा जी जैसा कि भैया मैं तो रिटर्न भी नहीं करूंगा. तो अब अपन को मनाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, ठीक है भैया फिर अभी अब रिटर्न नहीं कर रहे हो तो आप ही बता दो आंसर क्या है. तो वो खुशी खुशी यहीं पे आंसर भी बताएगा, printf सिंपल इंटरेस्ट इज, और जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करना है %f, SI and end of the curly bracket. So if you see the right side, डेटा लिया किसने, फंक्शन ने. क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. कैलकुलेशन किसने किया, फंक्शन ने. क्यों, क्योंकि फंक्शन का तो काम ही कैलकुलेशन करना था. और फिर डेटा का जो मतलब जो अपने कैलकुलेशन का जो आउटपुट है वो भी किसने प्रिंट किया, फंक्शन ने. क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब फंक्शन रिटर्न भी नहीं करना चाहता है. मतलब वो फूफा जी जो फूले हुए बैठे थे कि ना मैं डेटा लूंगा ना मैं डेटा दूंगा, तो अल्टीमेटली उनको ही सारा काम करना पड़ रहा है फिर, है ना. उनका ही नुकसान हो गया ना. क्यों, क्योंकि डेटा भी उन्होंने लिया, कैलकुलेशन भी उस फंक्शन ने किया, और आउटपुट भी उस फंक्शन ने दिया. सो आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर मैं इस फंक्शन को अच्छा लास्ट लाइन रिटर्न 0, बिकॉज उसकी अपने को बहुत आदत पड़ गई अभी मेन लिख लिख कर, राइट. सो रिटर्न 0 करेंगे क्या, नो. वाई, बिकॉज रिटर्न 0, 0 मीन्स वॉट, इंटीजर, राइट. तो यहाँ पे इंटीजर लिखा है क्या मैंने, नहीं. यहाँ क्या लिखा हुआ है, void. void means the function will not return anything. if the function is not returning anything, it means return कीवर्ड भी नहीं आएगा. क्लियर. तो ये हो गया अपना फंक्शन कंप्लीट. अब अगर यहां मैंने रिटर्न 0 तो ऑब्वियसली लिखते ही अपन, तो वो मैंने लिख दिया और इस कोड को रन मार दिया फॉर एग्जांपल. तो क्या ये कोड चलेगा, तो डेफिनेटली ये चलेगा. फिर आप बोलोगे चलेगा क्यों, यहाँ पे डेफिनेशन डिक्लेरेशन इतनी बात किया था वो तो कुछ दिख नहीं रहा है कहीं पर. तो वो भी अपन बात करते हैं, बट इस कोड को देखो मैंने कहीं पे यूज नहीं किया. अब कोड कंपाइल कहाँ से होता है अगर आप बोलोगे तो, इट विल बी लाइन बाय लाइन, राइट.
मेन से कंपाइलेशन नहीं होता है, मेन लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होता है। एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है? मेन से। लेट्स टेक, मैंने इस कोड को रन किया, पहले मेन चला, राइट। मेन में कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट रिटर्न जीरो, वो कंपाइलर रिटर्न जीरो करेगा, खत्म। तो मेन स्टार्ट हो गया, मेन एंड हो गया। क्या फंक्शन के आपने यूज़ किया है क्या कहीं पर? नहीं। तो अगर यूज़ नहीं किया तो यूज़ होगा क्या अपने आप? अपने आप तो कुछ नहीं होता है कोडिंग में। तो ना यूज़ किया है, ना यूज़ अपने आप होता है। तो ये मेन स्टार्ट होगा और मेन टर्मिनेट हो जाएगा। बट क्या ये एरर बनाएगा? नो। इससे एक चीज बहुत क्लियर समझ में आती है कि वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ फंक्शन बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज ऑल दिस फंक्शंस। आप फंक्शन बना के रख दो, जरूरी थोड़ी कि मुझे आज ही काम पड़े। हो सकता है मैंने आज सिंपल इंटरेस्ट बनाया और साल भर बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट का काम पड़े, राइट। तो जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करो। तो कंपाइलर्स आपके ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं कि ओके यू हैव क्रिएटेड अ फंक्शन देन यू हैव टू यूज इट, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं करते। चार रोटी बनाई तो चार ही रोटी खानी पड़ेगी, भले भूख है नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बना के चार रोटी रखी है, भूख है तो चार खा लो, नहीं है तो एक खा के काम चलाओ। सिमिलरली कि मेरा जो फंक्शन है वो मैंने बना के रखा हुआ है बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मुझे इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। करना है, अप अप टू यू, करना है करो, वो तो बनाए इसलिए यूज़ करने के लिए, बट अभी नहीं करना है, ओके इज़ फाइन। सो देयर इज नो देयर विल बी नो सिंटैक्स एरर, देयर विल बी नो वार्निंग्स, देयर विल बी नथिंग इन दिस केस। क्लियर? ओके। नाउ अब अपन तो उसको यूज़ करने के लिए अपन ने बनाया, तो अपन इसको यूज़ करते हैं। अब यूज़ कैसे करते हैं? अब आपके फ्रेंड आगे जा रहा है, आपको एकदम से कहीं पे मॉल में कहीं पे दिखा, तो आप क्या करते हो? उसको नाम से चिल्लाते हो ना, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी उसके नाम से चिल्लाना है। तो फंक्शन का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट। फिर आगे ब्रैकेट है खाली, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट खाली और एक डाल दो सेमीकोलन। सो दिस इज द कॉलिंग। अब कॉलिंग में रिटर्न टाइप नहीं आता है, ये लिखा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। सो वी हैव टू राइट डाउन दिस मच। सो दिस विल बी योर कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करना है, आवाज देना है। आवाज देना है मतलब उसके नाम से बुलाना है उसको। तो फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। अब पैरामीटर अभी यहाँ पे खाली है तो इसलिए कॉलिंग में भी खाली है। सो द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द पैरामीटर इफ एनी। In this case there is no parameters, so we are passing no parameters, correct. And then your favorite line, return 0, correct. Now अब ये जो है इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज योर कॉलिंग, राइट। कॉलिंग मतलब क्या बताया था अपन ने? कॉलिंग का मतलब यूज करना। तो अपन यूज तो कर रहे फंक्शन को, तो ये कॉलिंग हो गया। फंक्शन बनाना क्रिएट करना मतलब डेफिनेशन। तो ऑब्वियसली ये इतना क्या हो गया, ये पूरा दिस इज योर function definition. Let me write down only definition part. This is your definition. अब बचा है क्या? अब बच गया अपना डिक्लेरेशन। अब मैंने तो ये व्हाइट बोर्ड था इसलिए मैंने इसके दो टुकड़े करके लेफ्ट राइट करके लिख दिया। अगर आपको यही कोड VS कोड में लिखना है हियर, आप इसमें कैसे पार्टीशन करके लेफ्ट राइट लिखोगे? अब या तो आप मेन पहले लिखोगे, राइट, मतलब लेफ्ट साइड में जो है वो पहले लिखोगे, या तो राइट साइड वाला पहले लिखोगे, राइट। अब इमेजिन करो कि मैंने ये वाला लाइन पहले लिखा। लेट मी शो यू, राइट, इंट मेन लाइक दिस। उसके बाद उसमें फंक्शन को कॉल किया है, तो ये मैंने फंक्शन को कॉल किया सिंपल इंटरेस्ट, द ब्रैकेट्स आर एम्प्टी, रिटर्न 0, ठीक है। अब पार्टीशन तो कर नहीं सकते, राइट, तो हैश इंक्लूड वाला लाइन लिख दिया, मेन वाला पूरा कोड लिख दिया, कॉलिंग भी कर दी, राइट। अब अभी तो ये कोड नहीं चलेगा, राइट। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। इट इज, लेट मी रीरन दिस। आइडियली वो एरर आपने देखा होगा, बट लेट मी रीरन इट प्रॉपरली। ओके, नाउ सी, you can see
वो सिंपल इंटरेस्ट को एरर दे रहा है। क्यों? बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो इनबिल्ट तो कुछ है नहीं, तो अपने आप कॉल होगा नहीं, तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन ये वाला void सिंपल इंटरेस्ट, ब्रैकेट एम्प्टी थे, उसके बाद 3 वेरिएबल्स आ देयर, सो फ्लोट टाइप के प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, एंड आफ्टर दैट प्रिंटर वाला लाइन, सो एंटर principal rate and time slash n for the new line, scanf percentage f sorry percentage f, first value to be stored in principal, second value to be stored in rate and third value to be stored in time। ठीक है, उसके बाद अपना फॉर्मूला, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं si टू स्टोर द आउटपुट, एंड द फॉर्मूला इज si इज इक्वल टू principal into rate into time divided by 100, and we have to print it because return नहीं करना है, कर नहीं सकते because void है, right? So simple in interest is percentage f slash n for the new line and si I will print and save it, right? ये पूरा कोड हो गया, ये आपका कॉलिंग हो गया, ये आपका डेफिनेशन हो गया पूरा का पूरा फ्रॉम लाइन नंबर 9 to 18, राइट? ये डेफिनेशन हो गया। नाउ लेट्स रन दिस अगेन, इसको मैंने रन किया एंड यू कैन सी द सेम थिंग अगेन। अब क्यों एरर है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। सी, सबसे पहले तो एक एक करके एरर देखते हैं फ्रॉम द लास्ट लाइन। अब यहाँ पे कुछ स्कैनएफ के लिए भी एरर देखा रहा है, राइट? सो यू कैन सी स्कैनएफ का स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ है, तो विल करेक्ट इट। scanf, I will save it, I will rerun it, and now you can see again। अब देखो मेरा कोड चल चुका है, you can see this enter principal rate and time। let me first run this 1000 10.5 3.6 and you can see the simple interest is this much। मतलब कोड रन हो गया, कोड रुका क्या नहीं, बट सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत सारे लाइन्स अभी बना के आ रहे हैं, implicit declaration of function something, right? ये simple interest conflicting something like this। अब ये warnings क्यों? वार्निंग इसलिए, मैंने आपको क्या बोला था कि कोड कंपाइल कहाँ से होता है, लाइन बाय लाइन। इमेजिन करो सबसे पहले तो ये लाइन कंपाइल हो गई stdio.h वाली, फिर लाइन कंपाइल हो गई मेन वाली, ये तो कंपाइलर को समझ में आता है, कर्ली ब्रैकेट समझ में आ गया। जैसे उसने ये लाइन नंबर 5 पढ़ी, उसका दिमाग चकरा गया। क्यों? बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट मीन्स व्हाट, उसको कैसे पता चलेगा? मेन stdio.h एंड ये सब उसके जाने पहचाने, बट सिंपल इंटरेस्ट इज द नेम वी हैव डिसाइडेड। अपन ने खुद ने क्रिएट किया हुआ है ना फंक्शन, तो अपन ने नाम दिया है, राइट? अब कंपाइलर इसको कैसे माने कि ये सही है कि गलत है? बिकॉज मेरे नाम तो ऐसा भी हो सकता था, टी हटा के मुझे ऐसा नाम देना है, इंटरेस्ट की जगह, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि मेरी मर्जी चलेगी, फंक्शन तो मैं बना रहा हूं। तो हाउ द कंपाइलर विल नो दैट दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स? कंपाइलर को नहीं पता चलेगा, एंड दैट इज द रीजन कंपाइलर गिविंग द वार्निंग्स, करेक्ट? तो अब मुझे कंपाइलर को ये सिंटैक्स सिखाना पड़ेगा, तो मुझे क्या बताना है पहले, मीन्स बिफोर आई यूजिंग, बिकॉज यूज कर रहा हूं तभी तो कंपाइलर का प्रॉब्लम है ना। तो उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा आउटसाइड दिस मेन फंक्शन रिटर्न क्या करता है, void। फंक्शन का नाम क्या रखने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट, और फंक्शन एक्सेप्ट क्या करेगा, कुछ नहीं, एंड सेमीकोलन। so this line is known as the line number 3, right? This is known as, sorry, this line is known as declaration। अब कंपाइल कर क्या करेगा, पहले stdio वाली लाइन पढ़ेगा, फिर ये वाली लाइन पढ़ेगा। ये लाइन से उसको लॉजिक नहीं पता चल रहा है, बट हाँ उसको ये पता चल गया व्हाट विल बी द फंक्शन नेम, व्हाट द फंक्शन विल रिटर्न, एंड व्हाट द फंक्शन विल एक्सेप्ट। फिर मेन पे आएगा, जैसे वो इस लाइन पे आएगा तो वो अब ये उसके लिए बेंचमार्क हो गया है। जैसे आपको बचपन में हेलो की स्पेलिंग रटवाई होगी HELLO, और आपके सामने अगर मैं HELO लिखता हूँ तो आपके लिए वो स्पेलिंग गलत हो जाती है,
सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ना, ये कंपाइलर ने रट ली, उसके दिमाग में रख ली। अब जब कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, वो आपकी लाइन नंबर 3 से आपकी लाइन नंबर 7 को मैच करेगा। इफ द स्पेलिंग मैचेस, ब्रैकेट्स मैचेस, रिटर्न टाइप वगैरह, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ, राइट, तो कंपाइलर एरर दे रहा है अभी, यू कैन सी दिस। अब कंपाइलर क्या एरर दे रहा है, इफ आई गो एंड सी अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड कैन नॉट बी इनिशियलाइज, बट उसको कैसे पता चला कि मैं रिटर्न करने नहीं वाला हूँ, बिकॉज फंक्शन तो अभी लाइन नंबर 11 पे, वहां तक तो पहुंचे नहीं है, लाइन नंबर 7 पे एरर कैसे पता चल गई, बिकॉज उसको लाइन नंबर 3 पता है। करेक्ट, क्लियर, उसको लाइन नंबर 3 में पता है कि वॉइड है, सो यू कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, एंड दैट इज द रीजन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं INTRES करता हूँ, राइट, तो ये कंपाइलर के लिए बेंचमार्क रहेगा, एंड राइट, एंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एरर्स और वार्निंग्स, राइट। अब अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इट विल बी शोइंग मी, देखो, फंक्शन डेफिनेशन फॉर सिंपल इंटरेस्ट नॉट फाउंड, मतलब इस नाम का डेफिनेशन ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपने तो डेफिनेशन अलग नाम से बनाया। सो दिस विल बी द बेंचमार्क्स, राइट। नाउ ये आपका हो गया, फिर ये हो गया, उसने कंपेयर कर लिया, फिर जब यहाँ पे आएगा फिर इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल होने के बाद जब रन होगा, तो रन होगा मेन से, फिर मेन से कंट्रोल आएगा 7 नंबर लाइन पे, फिर जैसे 7 नंबर लाइन पे कंट्रोल ने क्या किया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को कॉल किया, तो इट विल डायरेक्टली जंप टू द सिंपल इंटरेस्ट एंड इट विल एग्जीक्यूट वन बाय वन लाइन। जैसे फंक्शन खत्म होगा तो कंट्रोल वापस कहाँ आता है, वापस से जहां से कॉल हुए वहीं पे आता है। सो कंट्रोल मेन से जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन को और वापस से मेन में आ जाएगा। अब ये होता कैसे है, इसके लिए अपन मेमोरी मैप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि ऐसा कैसे का कंपाइलर करता है कि फंक्शन 7 नंबर से कॉल हुआ और वापस से कंट्रोल 7 पे आ गया, उसको कैसे पता चल रहा है कि वापस वहीं पे जाना है जहाँ से कॉल हुए वहीं पे। सो दैट वी विल सी थ्रू द मेमोरी डायग्राम्स, right, and then return 0, so it will be end of your code. Now if I run this code, let me show you, right. Now see, ignore this line because this is something setup related issue, red one, but अब यहाँ पे देखो, यहाँ से warnings चली गई है। if I comment it out just to show you, let me delete it so that it will be easy for you to compare. See, these are some error warnings, right, we cannot say errors but warnings, और जैसे ही हटा दिया, if I compile it, see, कोई warning नहीं, error नहीं है, and this is the same output, right. Now still there will be a question in your mind, right, और आना भी चाहिए लेकिन अब ये इसलिए कि भैया ये अगर मैंने नहीं किया, ठीक है, वार्निंग दिख रही है मुझे, ठीक है, लेकिन मेरा कोड तो तब भी चल रहा था, मैंने ये लिख दिया तो वार्निंग हट गई, बट तब भी कोड चल रहा है, तो वार्निंग मेरा कोड तो रोक नहीं रहे, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है वार्निंग आया नहीं आया। सो यस, यू आर करेक्ट। तो सी आइडियली कैसा है ना कि सी के जो कंपाइलर्स है वो इस टाइप से डिजाइन, मतलब ये जो अभी VS कोड भी एडवांस आ चुका है, सी के कंपाइलर्स भी वगैरह इस टाइप से है कि वो उसमें एकदम स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं होती हर एक चीज की, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि ये कोड अभी चल जाता है, बिकॉज आपका ये जो फाइल है ना VS कोड वगैरह पूरा प्रॉपर इसको रीड करवा देता है, तो इट विल बी इजी फॉर द कंपाइलर टू चेक इट, राइट, पूरी फाइल में से, करेक्ट। बट इफ इट विल बी अ प्रॉब्लम व्हेन यू स्प्लिट ऑल दिस कोड, मेन अलग फाइल में है, फंक्शन अलग फाइल में है, राइट, और अगर आपने तब ये डिक्लेरेशंस करके यानी ये हेडर फाइल्स वगैरह यूज करके नहीं किया तो इट विल बी अ चैलेंज, करेक्ट। ये होता है। दूसरी चीज है, आपके कोड वार्निंग्स तो हमेशा ही देते रहेगा फिर, तो अगर वार्निंग्स को भी अपन इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज आज ये वार्निंग है, कल पता चले आज छोटा सा घाव है, कल जाके नासूर बन जाए वो, right. So we always try to fix all type of issues, whether it will be warnings, errors, whatever error है तो fix करना ही पड़ेगा because कोड ही नहीं चलेगा, but warnings also generally we fix it out, right. तो ये हो गया, क्लियर है। सो कोड चलेगा क्या, अगर आपका ये आंसर है कि मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया तो यस, कोड तो चल जाएगा। अब ये पुराने कंपाइलर जो थे, मीन्स व्हेन यू सी द रिकमेंडेशन ऑफ सीज, दिस इज हाउ वी राइट डाउन द कोड, फर्स्ट your header files, then your declarations, then main, and then the definitions. This is how C recommended.
और जो पुराने कंपाइलर्स थे, इफ यू हैव सीन टर्बो सी, राइट, टर्बो सीपीपी एंड ऑल दैट, तो अगर आप उसमें कोड लिखोगे ना तो इट विल बी अ एरर। अगर आपने ये हटा दिया, इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया और अब इस कोड को चलाया तो वो एरर देते थे, राइट। अभी आजकल ये नहीं आते। तो अब आप बोलोगे फिर तो डिक्लेरेशन हाँ ऑप्शनल हो गए। यस, आई विल से यस ऑप्शनल है, बट आपको फिर वार्निंग्स के साथ जीना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वार्निंग्स भी इग्नोर करना है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रूल। अब अपन ये डिक्लेरेशन कर क्यों रहे, अगर आपने एक कोर चीज समझ ली ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरा कंपाइलेशन होता है लाइन बाय लाइन। तो जब मैं लाइन नंबर 7 पे फंक्शन यूज करता हूं तो कंपाइलर को समझ नहीं पड़ता है कि ये फंक्शन सही बोलूं कि गलत बोलूं, बिकॉज उसके पास कुछ बेंचमार्क नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल हेलो का स्पेलिंग बचपन में नहीं आता, राइट, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो लेस्टिक उसको स्पेलिंग्स वगैरह नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको नया नया स्पेलिंग सीख रहा है, उसको आप हेलो का स्पेलिंग बोल दो कि HELLO, अब वो उसको सही बोले कि गलत बोले उसके लिए वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई? बिकॉज उसको चीज़ पता ही नहीं है, तो कंपेयर किससे करेगा। तो वैसे ही कंपाइलर के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट अगर उसको स्पेलिंग क्या है, एक्सेप्ट क्या करता है, वो कुछ बताया नहीं आपने, तो कंपेयर किससे करेगा कि वो सही की गलत है, कंपाइलेशन कैसे करेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू डू दिस वन। तो अल्टीमेटली गोल क्या है, कंपाइलर को यूज करने के पहले समझाना है। क्या समझाना है कि मेरा फंक्शन का नाम क्या है, क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या रिटर्न करेगा। तो फिर अगर मैं यही पूरी की पूरी चीज कंट्रोल एक्स करके इस पूरी की जगह पे वाई कर देता हूँ, मीन्स व्हाट आई हैव डन इज नाउ हेडर फाइल के जस्ट नीचे इंस्टेड ऑफ डिक्लेरेशन आई हैव पेस्टेड द डेफिनेशन एंड देन द कॉलिंग। अब कंपाइलेशन तो मुझे पता है कि लाइन बाय लाइन होता है, तो पहले हैश इंक्लूड कंपाइल होगा, फिर ये लाइन कंपाइल होगी। अब ये लाइन अगर कंपाइल हो गई लाइन नंबर 3, तो कंपाइलर को नाम पता चल गया, पैरामीटर्स पता चल गया, कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप पता चल गया, कुछ नहीं है, फिर वो ये लाइन भी कंपाइल कर लेगा। एंड व्हेन इट कम्स ऑन लाइन नंबर 16 टू यूज इट, उसको तो ऑलरेडी पता है फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में पास क्या करना है, फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एवरीथिंग इज द कंपाइल इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग। अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा फिर, बिकॉज उसको जो चाहिए वो तो मिल गया ना। एंड इफ यू सी इट विल बी द सेम, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, राइट। इफ आई रन दिस 10.5 3.6 something, you can see simple interest is calculated and it is printed. So basically declarations are optional, we can say yes, definitely it is optional. So अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिक्लेरेशन ऑप्शनल इसलिए कि हाँ कोड तो हर बार ही चलता है, आप फंक्शन ऊपर लिखो नीचे लिखो। फॉर मी वार्निंग्स भी आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो गलती है ही ना कोड में। जब कंपाइलर एक तरीके से आपको बता रहा है भैया ये चीज़ गलत है, तो उसकी सुन लेना चाहिए। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोड कोड चलाने के बहुत सारे तरीके, अपने को फोकस करना है सही तरीके पे। तो सही तरीका ये है जो सी रिकमेंड करता है कि पहले डिक्लेरेशंस करो, फिर कॉलिंग वगैरह आपका मेन वगैरह जो भी रहेगा वो, और फिर आखिरी में डेफिनेशंस लिख दो। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सी अल्टीमेटली सी क्या बोलता है कि मुझे उसी का कंपाइलर को यूज करने के पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर आप लेट मी रिवर्ट इस, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको यूज करने के पहले अगर फंक्शन नीचे लिखना है तो डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा अपना, मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि अगर डिक्लेरेशन नहीं किया तो कंपाइलर को लाइन नंबर 7 पे पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप सही है गलत है कैसा, मैच करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट यू आर सीइंग ऑन द VS कोड राइट नाउ, दैट इज करेक्ट, राइट। तो अगर आपको फंक्शन का डेफिनेशन बाद में लिखना है तो यूज करने के पहले डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, वरना फिर वार्निंग्स वार्निंग्स दिखने लग जाएगी। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको डिक्लेरेशन नहीं करना है तो फिर फंक्शन ही ऊपर बना दो लाइक दिस। तो फिर बात वही आ जाएगी कि ऊपर फंक्शन कंपाइल हो गया, नीचे कंपाइलर को पता है, राइट। तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड इफ आई जस्ट रीसमराइज दिस, सो सिंपली फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग तीनों होने चाहिए, बट उसमें से जो डिक्लेरेशन है वो ऑप्शनल है। अगर आपके यूज करने के बाद में आपका डेफिनेशन है, राइट, या फिर इसको अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो यूज करने के बाद अपने फंक्शन बना के रखा है तो आपका डिक्लेरेशन मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर आपने यूज करने के पहले ही आपका फंक्शन बना लिया है तो डिक्लेरेशन आप करो या मत करो, इट इज ऑप्शनल। सो राइट,
So declaration of a function becomes optional if you create a function, if the function definition is before the function calling, right? And if and the declaration becomes mandatory if the function definition is after the function calling, right? क्लियर है? बट अगेन कोई ज़्यादा ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फंक्शन यूज करने के पहले फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मुझे हेलो का स्पेलिंग लिखना है तो उसके पहले मुझे हेलो की स्पेलिंग आनी चाहिए, करेक्ट? क्लियर है? तो बस वो इतनी चीज़ है। अब वो कैसे भी आए, कोई बताए या मैं खुद से सीख के लिखूं, वैसी कहानी है। तो मेन में मैंने फंक्शन यूज़ किया है। अब उसके पहले अगर मैं फंक्शन बनाना बाद में चाहता हूँ तो मैं उसका डिक्लेरेशन ऊपर कर दूंगा, ठीक है? या तो फिर मैं फंक्शन ऊपर बना दूंगा तो डिक्लेरेशन ही नहीं करूंगा, लाइक दिस। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट? ये बहुत ओवरव्यू देखा है। इफ यू फाइंड एनी डाउट्स एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, राइट, जो अपने फर्स्ट पार्ट देखा है, द टॉपिक इज नॉट येट ओवर बट द फर्स्ट पार्ट दैट विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप, अगर इसमें कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, right, and I will get back to you. In the next session we will start with the second type, right? And once we have all these 4 type, we will have a separate session to compare which one is better and which type to be used in a particular scenario.